So, hi everyone. I don't know why I am recording this voice, but I feel to record it. Ah, कोई काम भी नहीं है इसको रिकॉर्ड करके, पर फिर भी आई लाइक क्या ही बोलूं। लाइक मैं सोच रहा था जीवन के बारे में। आई वाज थिंकिंग अबाउट लाइफ, आई वाज थिंकिंग अबाउट नेचर, द यूनिवर्स, एंड आफ्टर observing everything, I understood that how insignificant we are, how small we are. We think we are everything. Our problems, our work, our stuff, our family is everything. But when you will compare yourself with the universe, you are like too small than a speck of a dust. And that is the reality. अगर हम सोचे कि 200 साल पहले कौन सबसे फेमस था, इंटरनेट में शायद मिल जाएगा, पर तुम्हें पता है? शायद नहीं पता। 400 साल पहले नहीं पता, 600 साल पहले नहीं पता। Every time people come and go from from this earth, from this living territory, and still we give so much importance to it. मैं सुन रहा था कि be strange, be odd, be weak, be odd, be strange, be unique. अगर सब कोई काम कर रहा है, सब लोग एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो छोड़ दो उसको, कोई और दूसरे चीज के पीछे भागो। Be strange, do whatever you feel, because at the end nothing really matters. हम सब लोग सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं यहाँ पे। Everyone, whatever you are doing right now, you are just passing the time and approaching towards death, and that is the reality. अगर मैं कहूँ कि तुम एक स्वप्न देख रहे हो, you are dreaming, and in that dream you became a king, and suddenly you wake up. Then what happened? Nothing. Your day started off. You became a king in your dream, but not in the reality. This is life. It is like a dream. You are into someone else's dream, and you're just a character. You're just doing your part. अगर यहाँ पे राजा भी बन जाओ तो चले जाना पड़ेगा यहाँ से। भिखारी भी बन जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, चले जाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से।
राजा भी बन जाओ तो कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, भिखारी भी बन जाओ तो कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। और एक शेर था कि ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, द एंड इज डेथ। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, and maybe that's why life becomes so much beautiful. Maybe, I don't know. That's why I am using the word maybe. Death is terrifying. At the same time, death is beautiful. Death is love. Love is death. There is a great story that once upon a time there was a king and he was too ambitious. हमारे हमारे तरह ही होगा। हम आजकल जैसे चाहते हैं कि एक बड़ा नौकरी मिल जाए, एक अच्छा काम मिल जाए, कुछ और पैसे हो जाए, like that only. The king at that time wanted to conquer the whole world. But before that, the king thought that one day we will have to left all these things behind. So he prayed to God for days and months. And listening to his prayer, God came before him. And then the king asked God that, see, I want to conquer the whole world, but one day I have to leave all these things behind. So what will you give if I will conquer the whole world? अगर मैं ये पूरा पृथ्वी जीत जाऊं, अगर ये पूरा पृथ्वी मेरे कहने पर चले, तो आप क्या दोगे मुझे? क्योंकि मरना तो है, यहाँ से जाना भी है, तो क्यों इतना मेहनत करूं, क्यों इतना सर पैर तोड़ू, हाथ पैर मारू, क्यों? तो भगवान कहते हैं ठीक है, जब तुम मरोगे तो तुम जब आओगे मेरे पास, तो वहां पे एक पहाड़ होगा बड़ा सा, उसमें अपना नाम लिख देना। तो द किंग थॉट, या इट्स अ गुड रिवॉर्ड, बिकॉज जो लोग भी मरेगा उस पहाड़ को देखेगा और उस पर उसका ही नाम होगा, एक बड़ा सा पहाड़ पे उसका नाम। सो दैट्स अ फेम, राइट? Like in today's world, we are running behind fame. That's a fame. The king thought, okay. During his entire life, वो मेहनत करता गया, वो जीतता गया, लड़ाई करता गया, और अंत में जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। And the thing is, he wanted the whole world under his control, and it happened. He defeated all the other kings and he became the conqueror. और फिर बारी आई उसके मौत की। जब वो मरने वाला था तो ही थॉट, अकेले क्यों जाऊं? He is not used to live alone. 10 लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। So he ordered to kill the मंत्री और the administrator also, कि इसको भी मार दो, ये भी जाएगा मेरे साथ। So that's what happened. Both of them died and both of them went to God. And when their souls arrived there, what happened was
when their souls arrived there, there was a man in front of a door. The man said, "Beyond this, you cannot." To his administrator, the guard said, "Beyond this door, you cannot go." Why? The king asked. वो गार्ड ने कहा कि तुमने जीता है दुनिया को, तो इस दरवाजे के पीछे तुम ही जाओगे, सिर्फ ये नहीं जा सकता। द किंग सेड, ओके, ठीक ही तो बोल रहा है वो, मैंने जीता है तो मैं ही जाऊंगा, पहाड़ पे अपना नाम लिखूंगा। इसका ही तो इंतजार था पूरा जीवन में, इसके पीछे ही तो दौड़ा अपने पूरा जीवन काल। ना अपने बच्चे को टाइम दिया, ना फैमिली को टाइम दिया, ना अपने आप को टाइम दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम रनिंग बिहाइंड दिस थिंग ओनली। तो वो गया, वो जाकर बोला कि वो जाकर देखा कि एक बड़ा सा पहाड़, और उसमें बहुत सारा नाम पहले से ही लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है पूरा पूरा पहाड़। द माउंटेन वॉज फिल्ड विथ नेम। जैसे कि एक बहुत पुराना मोन्यूमेंट में अगर चले जाओ भारत में, तो बहुत सारे नाम लिखा हुआ मिलेगा। जस्ट लाइक दैट, इट वॉज फुल्ड, इट वॉज फिल्ड with names of people. The king got angry. What happened? I was the conqueror. He called God again. God came. God said, what happened? The king called, what was this? You betrayed me. तुमने धोखा किया मुझसे। तुमने कहा था मैं अपना नाम लिखूंगा एक पहाड़ पे अगर मैं जीत जाऊं। तो भगवान ने कहा, लिख दो, यहाँ पे कोने में कहीं लिख दो, जगह तो बचा ही हुआ है, थोड़ा छोटा करके लिख दो। King said, but what about all these names? तो भगवान ने कहा, सिर्फ तुमने ही जीता क्या पूरी दुनिया को? तुम्हारे पहले बहुत आए और गए, ऐसे ऐसे राजा बहुत आए और गए जो पूरी दुनिया को जीत लिए थे, और उनका ही इसमें नाम है। और क्या ही बोलूं इस कहानी का मॉरल के बारे में, समझदार को इशारा ही काफी है। और एक बात कि महाभारत तब नहीं खत्म हुआ जब पांडवों को राजगद्दी मिला। महाभारत तब खत्म हुआ when Krishna was in the forest resting in a tree, and a arrow stuck in his feet, and he left the mortal body, and Pandavas stepped towards heaven. तब खत्म हुआ महाभारत। महाभारत पांडव के मौत से खत्म हुआ, पांडव के राज गद्दी पे जाने तक ही हम कहानी सुनते हैं, लेकिन that is not the true story. And another thing is that रामायण तब नहीं खत्म हुआ जब राम जीत गए। रामायण तब खत्म हुआ जब सीता माता धरती में समा गई और राम अपने इस देह को समुद्रों में विलीन कर दिया। So at the end of the day, you should remember death is the only truth. And that's how you should live. That's how. और बाकी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या है? Everything is a dream. Everything is Maya.
Everything is neither true nor false. Everything is neither black nor white. Everything is gray. ठीक या भूल? And we used to do stuff to make this time pass. We used to do stuff to make these years count. And according to the universe, if I if I consider your lifespan to be 100 years, that is not true nowadays. But still, if I give you 100 years of lifespan, it is like a blink of an eye to the universe. इतना छोटा सा समय है ये, क्या ही कर लोगे इसमें? तो सोचो थोड़ा कम और जियो थोड़ा ज्यादा. और एक बात मैं और एक बात मैं सुन रहा था कि मैं जो बोल रहा था पहले कि बी स्ट्रेंज, बी ऑड, बी यूनिक, डिफरेंट हो उसे. हम ना डरते हैं कुछ करने से. अगर एक झुंड, शायद अगर तुम एक पार्टी में जा रहे हो, सब सूट कोट में आएंगे. चले जाओ वहां पे एक शर्ट पहन के, एक हुडी पहन के, एक ट्राउजर पहन के. बिकॉज external beauty doesn't matter. Be weird. Do whatever you love. Do whatever you want it to. Do whatever you feel. Follow your instincts. जो कट फीलिंग होता है उसको फॉलो करो. बाकी तो यहाँ पे राजा भी बन जाओ तो भी फायदा नहीं, भिखारी भी बन जाओ तो भी फायदा नहीं. लोग कहते हैं कि टेक रिस्क. ऐसे देर इज नो रिस्क एट ऑल. क्या ही रिस्क लो लोगे, सब कुछ गवा दोगे एक झटके में. हर कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे बिना, क्यों कोई मुझको याद करे. मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है. I have a great poem, I guess. एक बहुत ही अच्छा शायरी है कि आईना मुझसे कहता है कि कहना तो नहीं चाहिए. आईना मुझसे कहता है कि कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी तक जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था. There is this beautiful poem. You will see people that you will see, like, you may see people without emotions. If they win something, they are not too much excited or happy. If they lose something, they are not too afraid. If we'll see that, so so that's this poem is all about. कि जो मौन है वो काफी कुछ बोल चुके हैं. जो मौन है वो काफी कुछ बोल चुके हैं. जो मुस्कुरा रहे हैं वो रात भर रो चुके हैं. जो अब किसी को खोने से डरते नहीं, वो अपना सब कुछ
गवा चुके हैं। अगर तुम देखो किसी को जीत कर भी शांत खड़े, तो समझना वो काफी कुछ हार चुके हैं। अगर तुम देखो किसी को जीत कर भी शांत खड़े, तो समझना वो काफी कुछ हार चुके हैं। अकेले चलने से जिन्हें अब डर नहीं लगता, वो अपना साथी कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। ये मंजिल, ये रास्ते अब जिन्हें सुकून नहीं देती, ये मंजिल, ये रास्ते अब जिन्हें सुकून नहीं देती, वो अपना सुकून किसी एक शख्स को मान चुके हैं। I got it from Instagram. I don't know the writer. जानना ही क्या है राइटर को, जानना ही क्यों? Experience the art. जानना तो चाहिए राइटर को, लेकिन आई थिंक लाइक जो वेदांत कहता है कि आई एम दिस यूनिवर्स, व्हेन आई विल किल माई ईगो, जो मैं वाला, मैं रूपी अहंकार जो बैठा है अपने अंदर, उसको जब मार दूंगा तो मैं ही इस समस्त ब्रह्मांड हो जाऊंगा। तो मैं ही ब्रह्मांड हूँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान। And name is just a unique identification given by the society. So I don't believe in all those things. पहले कोई मुझको याद करे, कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे बिना, नाप रहे हो जिसके पहर वो कहर काट के आया। और एक बात, another thing is that if you don't feel something to do, जोर जबरदस्ती मत करना। Discipline, hard work, I hate these words. I hate these words. Maybe for the society these are very important. Maybe for materialistic success these are very important. But I hate it. Why? Because when you are not feeling it from the inside, don't do the task. Don't do anything. Sit down, relax. अगर मन करे तो कर लो, मन ना करे तो मत करो, क्या ही हो जाएगा। सपने में जी रहे हो तो एक, चले जाओगे 2 दिन बाद। तो एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड प्रूफ फॉर दैट। रामकृष्ण परमहंस, द गुरु ऑफ Swami Vivekananda, what he used to do is he used to love he like he used to love Ma Kali, right? He was a devotee of Ma Kali. So he was a pujari in a temple, and in that temple uh, he used to get salary or something else. I don't know about that. He used to get salary, I guess. But what he used to do, वो क्या करते थे कि जब मन किया तब माँ को पूछते थे। Whenever he used to feel the urge
feel the urge to pray, feel the urge to devote his time. Then he used to conduct his puja. Why is it so? कभी कभी ऐसा भी होता था कि 4-5 दिन तक वो पूजा नहीं करते थे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि 12 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एक साथ at a single stretch he used to do puja of Maka. So that is the thing. इसके लिए शायद उन्हें निकाला भी गया वहां से, इसके लिए शायद उन्हें like he was removed from the position. I don't know, but maybe he was removed क्योंकि समाज कहता था कि क्या कर रहा है ये बंदा, इज मैड, पागल है ये तो, माँ को कैसे पूज रहा है ये, 4-5 दिनों तक नहीं पूजा, एकदम 12 घंटे, 24 घंटे भजन में भजन कर रहा है, मिलीन है, पूजा कर रहा है, गाना गा रहा है. सो व्हाट इज दैट? एंड आई थिंक द सोसाइटी हैज लेफ्ट only the mads to experience the true happiness. पागलों को ही इस समाज ने खुश रहने की इजाजत दिया है, तो बन जाओ थोड़ा पागल, हो जाओ. क्योंकि जो जो लोग, the people who has lived their life, I'm not using the word success here, I may have used the word the people who are successful in life, but I don't actually believe in this word success. If I like speak out these words now, success, the thing that comes to your mind is cars, fancy buildings, private jets, lavish lifestyle. This thing will come to your mind, and that's why I hate these words. That's why I'm using that the person who have really lived their life. If you will if you will study their life, they're a little bit screwed up. They're a little bit mad. The definition of mad given by the society fits into them. They used to do whatever their instinct feels. They used to do whatever their gut feels. जो मन करता था वही करते थे. जो मन करे वही करो, और उसे जी जान से करो, क्योंकि कुछ मायने नहीं रखता. नथिंग. और जियो तो अपने घमंड पर जियो तो अपने उसूलों पर जियो तो अपने रूल्स और एथिक्स के दम पे जियो. डोंट लाइक किसी के सामने झुक मत जाना. झुकना मतलब ऐसा नहीं कि बिकॉज ऑफ योर ईगो यू आर लाइक you want to show yourself strong. No, that is not the case I'm talking about. किसी के सामने ऐसे मत झुक जाना कि कोई तुमसे 2-4 पैसा ज्यादा कमाता है तो झुक गए उसके सामने. कोई तुमसे एक्सपीरियंस में बड़ा है, हाँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू कैन, बट इफ morals conflict, you should stand up for yourself.
कोई तुमसे ज्यादा पैसा कमाता है, कोई तुमसे ज्यादा, कोई अच्छा पद पे है, कोई अच्छा काम करता है, तो झुक मत जाना किसी के सामने. If you are giving a job interview for some money, if you are talking with, you need money, तो झुक मत जाना. लाइक बाबा साहेब अम्बेडकर. हम्म, वो किस्सा थोड़ा मुझे याद नहीं है कि लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे, उनके पास खाना नहीं होता था, कि वो लाइब्रेरियन ने खाना मतलब ऑफर करते थे, वो पहले पहले खाते नहीं थे. Like, और वो कहते थे कि he was going through a hell lot of problems, a hell lot of financial problems, but still वो कहते थे कि अभी आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब है अभी. he used the word now because he knew it is temporary, everything is temporary, nothing is permanent and change is the only constant. और अगर ये दिमाग को काबू में कर लिया, another thing is, वेदांत क्या कहता है, तुम्हें ये ही महसूस करना है थ्रू मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से, कि यू आर नॉट द बॉडी, you are not the body, you are mind, not the mind, you're just the pure consciousness that is present at this very instant moment. That is the thing you have to experience through what? That is the thing you have to experience through meditation, through prayer, through whatever you can say, through religion, whatever you can name it. मैं नाम से मायने नहीं रखता, नाम तो कुछ भी दे दोगे. नाम तो एक कौवा का नाम तितली कर दो, तो कौवा तितली थोड़ी बन जाएगा. नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, बट तो वो शुड बी डिफाइंड इन ए सबकॉन्शियस. ठीक. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, हाँ, you are not the mind, you are not the body, it's just a pure consciousness, right? So why to think about this body, why to think about this mind? और अगर मन को काबू में कर लिया तो सब कुछ काबू में कर लिया. ये देख लो स्टीफन हॉकिंग्स को. शरीर डिसेबल्ड है पूरा, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बैठे हुए हैं व्हीलचेयर पे. दुनिया को क्या क्या दे के चले गए. क्यों? वाई इज इट सो? बिकॉज हिज माइंड इज अंडर हिज कंट्रोल. और वही देख लो दुर्योधन को. इज अ मस्कुलर बॉडी, इज अ ग्रेट बॉडी, इज अ ग्रेट वॉरियर, पर भूल कर बैठे, अपने मन के गुलाम हो बैठे. सो दैट इज द थिंग, राइट? मुझे आई ऑल्सो थिंक अबाउट, often think about the great warriors, warriors क्या कहूँ, जो हमारे देश के लिए लड़े थे, आजाद करने के लिए. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ही वॉज फोर्थ रैंक इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. बाहर जाके देना पड़ता था तभी, दैट इज नॉट हेल्ड इन इंडिया, राइट? बाहर जाके देना पड़ता. फोर्थ रैंक, छोड़ दिया नौकरी, नहीं करना था, because he has had a greater passion. He he will free India, he will give India freedom. That was his passion, that was his motive. तो छोड़ दिया नौकरी, नहीं करना था. और ऐसा नहीं कि उन्होंने लड़ा अपने लिए, नहीं, हमारे लिए लड़े. और his whole life was full of
डिफिकल्टीज, एक एक दिन डिफिकल्ट था उनके जीवन में. ही चूज द डिफिकल्ट पाथ बिकॉज दैट्स व्हाट एक्साइट्स हिम. दैट इज व्हाट लाइफ इज अबाउट. गुलामी करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं. करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे. छोटा मोटा करके क्या ही होगा. एंड द थिंग इज एट लास्ट नथिंग मैटर्स. बड़ा करो छोटा करो, जाना तो है यहाँ से, तो बड़ा करके ही जाएंगे, छोटा क्यों करे. एक नौकरी करे, शादी करके मर जाए. सो वाई टू चूज दैट पाथ. ओशो सेज live dangerously. Live dangerously. What does it mean? It means is that if you have two options right now in front of you, or if you have multiple options in front of you, choose the one that is the most difficult and that one that excites you the most. Choose that path. वो रास्ता मत चुनो जो आसान है, सब कर रहे हैं, मिल जाएगा कुछ उससे 2 दिन 3 दिन बाद. वो रास्ता चुनो जिसमें बाधा है. तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो लग रहा है नहीं होगा, मुमकिन नहीं है, that is the thing. And there is another quote: if people are not laughing at your goals when you talk about your goal is too small. Goal is also a fucked up thing because अंत में like जब जब से हम कुछ बनने, कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तब से ये चिंता, ये जो टेंशन, जो मेंटल हेल्थ खराब होना शुरू हुआ है. Why? You have to understand that in what position you are currently in. उससे कुछ बनना नहीं है तुम्हें. तुम्हें अपने आप को जानना है. If you have to involve in the process of not becoming anything, you have to involve yourself in the thinking of who you are. तुम कौन हो? Who you are is the real question. I think that's it. बहुत समय हो गया, 37 minutes. That's it. Bye bye. Tata.